Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Professor Luqman. In this video, we're gonna discuss most common cause of watering in newborn baby and its management. Listen this video carefully. It's for undergrads and as well as for the patient counseling. We are having patient discussion and management plan. And the basic idea is to know the level of obstruction, whether obstruction is at punctum, canaliculi, that is vertical, horizontal, or common, or at the level of nasolacrimal duct. And at the end, I try to give brief idea of nasolacrimal system, its anatomy, its physiology, and basic line of management. जी कैसे आना हुआ? सर बेटा है 3 माह ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਤੇ ਜਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਮ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੇਸਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पीला होता है पानी ਹਾਂਜੀ पानी पीला होता है ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਵਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਖੇਲਦਾ ਕੂਦਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ अच्छा इसका अभी तक कोई इलाज भी करवाया आपने ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਡਰਾਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਚ 3-4 ਦਫਾ ਸਰ 3-4 ਦਫਾ ਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ करते हो नहीं करती बेगम आप करती हैं हाँ जी अच्छा तो ये करके बताएंगे मुझे अभी कैसे मैं भी आपसे करवाता हूँ हाँ जी तो फिर इस पे इसके अलावा कोई दवाई इस्तेमाल की हो हाँ जी साथ दवाई इस्तेमाल की कोई दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक कतरे हैं एक से ज़्यादा हैं नहीं एक कतरा ही सर एक ही कतरा है हाँ जी एक ट्यूब भी यूज़ करवाई डॉक्टर साहब ट्यूब भी यूज़ करवाई है अच्छा तो जो ट्यूब है वो किस टाइम डालते हैं कितनी रात को डालते हैं और कतरे कितनी दफ़ा डालते हैं कतरे 3 दफ़ा सर 3 दफ़ा डालते हैं एक आंख में दोनों आंखों में दोनों आंखों में तो इसका मतलब है अब बच्चे को पानी का मसला है और आंख से थोड़ा सा जाले की तरह कुछ आता है जी जी दूसरा आप कतरे इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ जी ठीक है एक कतरा है और 7 ट्यूब है हाँ जी कतरा दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्यूब रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें ऐसे ही है ऐसे ही है इसके अलावा कोई और मसला नहीं है कुछ और आपने बताना हो नहीं कोई नहीं सर ठीक है थैंक यू ये जो बच्चे की पैदाइश थी ये नॉर्मल हुई थी नहीं ऑपरेशन से हुआ था इसका वजन कम तो नहीं था जब पैदा हुआ नहीं सर ऑक्सीजन तो नहीं लगी इसे नहीं सर बाकी बिल्कुल हेल्दी था वजन कितना था इसका वजन सर तकरीबन 2 लिखा सर वजन नॉर्मल सीगा ना बस ऑक्सीजन भी नहीं लगी अस्पताल से दाखिल भी नहीं रहा बच्चा चलो ठीक हो ठीक थैंक यू अब आप मुझे बताएं कि इसका मसाज कैसे करती हैं आप दसो ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦਬਾਣਾ ਇਹ ਇੰਜ ਇਹ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 3-4 ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 7-8 ਦਫਾ ਦਿਨ ਚ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਜ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ठीक है हाँ जी तो आपने किया कभी मसाज इसका आपने नहीं किया कभी अच्छा मैं अब इसका तरीका आपको बताने लगा हूँ तो उस तरह करना है ठीक है जी और कैसे करती हैं इस तरह ये दोनों उंगलियों से भी हाँ करती हैं जी दोनों उंगलियों यहीं पकड़ के दबाती हैं सिर्फ हाँ जी
सबसे पहले तो बच्चे को ना गोद में लें सही तरह, ये सही नहीं है, इजी नहीं है बच्चा। हाँ जी। एक तो गोद में लेना, और कोशिश ये करें कि 2 बंदे साथ हों शुरू में। उसकी वजह ये है कि एक बंदा इसके सर को पकड़े, जैसे आप आए ज़रा, ठीक है, आपने सर को पकड़ना है जी, ठीक है। और दूसरा ये है चीची उंगली, जी, छोटी उंगली जो है ना, छोटी उंगली से यहाँ पे रख के, ये जगह यहाँ पे ना सैक होता है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने से ये होगा, इसमें थोड़ा सा गंद होगा ना जो, वो बाहर आ जाएगा जी। अगर गंद बाहर आ रहा है तो उसे आपने साफ कर लेना। ठीक है साफ करने के बाद फिर इसी जगह पे रख के जी। इसको थोड़ा सा नीचे को लाना है, यूं जैसे मैं कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। इसी तरह इस आंख को प्रेस करना है, ये जैसे मैं कर रहा हूँ, जी। और इसको यूं नीचे लाना है हल्का सा, नाक के साथ साथ। बात समझ रहे हैं? जी जी। ठीक है, इस तरह करेंगे तो ये एक इसका हुआ है, एक मसाज। एक मसाज हुआ है, ठीक है। बच्चा रोएगा, उसे रोने देना है, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि होता यही है कि जब आप मसाज करने लगते हैं ना तो वालदा हाथ पीछे कर लेती है, ऐसे करती है ना जी। जब रोता है, ऐसे करती हैं, हाँ जी। है ना, तो ऐसे कर लेती हैं, तो वो मसाज ठीक हो नहीं पाता। अच्छा सर, ये मसाज नाल अख में तो नहीं मसला बनता? कुछ नहीं होता अगर आप इस साइड पे रखेंगे। ਇਹਦੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐ ਸਾਈਡ साइड ਨੂੰ जरा बबल जाए ना, वो सर अंदर गहरा हो गया। अच्छा मैं वो बताता हूँ, एक चीज़ और, असल में होता ये है कि एक तो छोटी उंगली से करना है क्योंकि हाँ जी बच्चा है, ऐ संगल वाली दूसरा इस उंगली का ना नाखून काट लेना है आपने, करते ठीक हैं। है, और छोटा कर लेना है, अच्छा। क्योंकि ये जो नाखून होता है ना ये हाँ जी, यहाँ पे फैला लग के सकता जाना, हाँ है, वो जी। लगा तो फिर बच्चे को डैमेज करेगा, ठीक है। तो ये तो रोए, एक ने सर पकड़ लिया, अब आप करके दिखाएं बाजी, ये देखें ना, ये नाखून अगर आपका थोड़ा सा हाँ कटा जी वो होगा ना, उत्ते लग तो ये जाएगी। बस देख लीजिएगा ना, इसको नहीं ये नहीं, यूं करके इसको आपने दबाना है, जैसे कि मैंने दबाया है, ठीक है, और दबा के इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे लाना है, ये देखें ना पानी मेरे हाथ में, अच्छा ये ज्यादा जोर ना दबाना सर, या जितना ये अभी फोर्स लगा रही है ना इतनी लगानी है, ज्यादा जोर से भी नहीं लगानी है, यहाँ की हड्डियाँ होती हैं नाजुक, जी जी। उनका भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा। तो जितना जोर अभी प्रेशर आपको बताया है ना, इतना प्रेशर लगाना है, लेकिन बच्चा ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। तो ये इस तरह करना है आपने, तो 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा हाँ इधर वाली ऐ जी आंख ऐ वेख लत्ता फड़ के रखो ना। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? अच्छा, ये जो मसाज आपने करना है ना, जैसे मैं अब आप पूछ रहे थे कि बच्चे का कितना प्रेशर हो, तो ये मैं आपको फील कराने लगा हूँ। ठीक ये छोटी उंगली है, जी। इसको यहाँ पे रखते हुए ये जितना प्रेशर मैं दबा रहा हूँ ना इस जगह पे, ये जगह है, जी जी ये नाक आंखें जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं ना, जी जी तो ये इस जगह पे ना जी। यूं ऐसे करना, इससे ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ठीक ये है। यूं करके यूं हल्का सा यूं लाना है अंदर को, जी जी। ठीक है, और नीचे को, और फिर ये ऊपर से हल्का सा साथ यूं लेके आना है, ये ठीक है जी, इस तरह करना है। इसी तरह आपने दूसरी उंगली से करना है, जी दूसरी साइड पे, ये तीसरी उंगली है, जी जी ठीक है, इसको यहाँ से हल्का सा आपने प्रेस किया, जी जी ये प्रेस किया तो अंदर जो गंद होगा वो बाहर आ जाएगा, जी। और उसके बाद आपने इसी को इस जगह पर रखते हुए थोड़ा सा इसे डाउन यूं करना। बात समझ गए? जी जी ये जी मकसद ये है कि जो यहाँ पे एक छोटा सा सैक बना होता है जी जिसमें इसकी पानी की सिक्रीशंस इकट्ठी होती हैं नीचे, क्योंकि डक्ट बंद होती है, जी जी ठीक है, तो इकट्ठी होती हैं, जब आप प्रेस करेंगे तो गंद बाहर आ जाता है, जी ठीक है, उसे आप क्लीन कर लें। जी। क्लीन करने के बाद जो है इस तरह आपने जैसे बताया है ना ठीक सर। उस तरह करना, ठीक है जी। अब समझ आ गई है आपको? करके दिखाएंगे अब आप उधर? हाँ जी हैं? हाँ। अब करके दिखाएं आप भी। हाँ जी, तो ये सर पकड़ लिया, जैसे ये मैंने स्टेबल कर लिया, शाबाश, प्रेस करना और थोड़ा सा इसी तरह दूसरी साइड पे भी, वेरी गुड,
आपने ना उंगली की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। गुड, ऐसे कर। थोड़ा सा क्रीप रखिएगा, रखिए यहाँ पे यूँ। नहीं 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 रखिए यूँ। नहीं ठीक है। यहाँ पे यूँ। चलो इधर इधर हाँ जी, कैसे करेंगे मसाज आप? इससे बच्ची थोड़ी सी अनईजी है। एक तो इसको लिटा लें सबसे पहले ना, गोद में लेटी हो बच्ची, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्ची कोऑपरेट नहीं कर रही तो एक आप बंदा साथ ले लें, ठीक है, जो इसके हेड को स्टेबल कर ले, और यहाँ तीसरी उंगली रख के लेट हर कराए, उसे रोने दें। तीसरी उंगली रख के हल्का सा आपने यूँ प्रेस करना है अंदर की तरफ। अगर इसमें गंद होगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर रख के ऊपर से डाउनवर्ड थोड़ा सा यूँ करना है, नीचे को लाना है, सही दोनों आंखों कीजिएगा ज़रा एक दफ़ा। आज से चलो आप ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देख, दूसरी आंख को कीजिएगा, राइट आई। इसमें अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो दिस इज़ योर आई, ओके। इसकी एक नाक वाली साइड है और एक कान वाली साइड है। नाक वाली को अगर हम नाक को यूँ थोड़ा सा बना लें, दिस इज़ योर नेज़ल एंड दिस इज़ योर टेम्पोरल। टेम्पोरल साइड पे यहाँ पे ग्लैंड पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। इसके दो हिस्से होते हैं, पैल्पेब्रल एंड ऑर्बिटल। फिर अगर देखा जाए तो मेजर 2 कंपोनेंट हैं पूरे एपरेटस के। एक वो चीज़ है जो सिक्रीशंस बना रहा है, और दूसरी वो चीज़ है जो सिक्रीशंस को ड्रेन आउट कर रहा है। तो सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी 2 कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो डक्ट्स होती हैं उनके थ्रू ये पानी जो बनता है, आंसू जिन्हें कहा जाता है, उसकी कंपोजिशन पे भी अभी बात करते हैं। तो ये यहाँ से बनने के बाद डक्ट से होता हुआ, सैक से होता हुआ, यहाँ कंजक्टाइवल सैक के साथ ट्रिकल करता है, यहाँ तक आता है। और यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें पंक्टम कहते हैं। इन ओपनिंग्स को अगर आप देखें तो इनका एक वर्टिकल पार्ट है, अपर एंड लोअर, और एक हॉरिजॉन्टल। ये दोनों मिलके कॉमन बनाती हैं, कॉमन मिलके एक सैक बनाती हैं, सैक मिलके एक डक्ट बनाता है आगे, दैट इज़ कॉल्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। और बच्चों में पैदाइशी तौर पे यहाँ पे वाल्व होते हैं, वाल्व फ्रूजन-मुलर और हैसनर्स। ये एक थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक नेचुरल फिनोमेना है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कुदरत का निज़ाम है कि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। कुछ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सक्शन प्रेशर क्रिएट करके यहाँ पे एक पुल क्रिएट करते हैं, पानी इधर मूव करता है। और अगर ये वाल्व आगे से बंद हो मेम्ब्रेन, तो पानी बजाय इसके कि यहाँ से हलक में जाने के यहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, और यही पानी जमा हो के यहाँ से बाहर आ जाता है और रोल आउट टू द चीक्स। तो ऑब्स्ट्रक्शन में इट्स वेरी कॉमन कि पानी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसलिए रिगर्जिटेशन टेस्ट की जो है इम्पॉर्टेंस है कि आप इसे सैक को प्रेस करते हैं और वो पानी यहाँ से मूव करके बाहर आ जाता है। तो इसे कहते हैं रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है। तो एनएलडी ब्लॉकेज में रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो ये एनएलडी ब्लॉकेज कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, दोनों की डिफरेंट कॉजेज़ हैं। बच्चों में ये कॉज है जो अभी आपसे डिस्कस की है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही, द फर्स्ट स्टेप इज़ जस्ट टू लैक्रिमल सैक मसाज अप टू द एज ऑफ 9 months to 1 year, right? Then you can go for probing irrigation or probing syringing
अगर उससे भी ठीक नहीं होता देन आफ्टर 4 to 6 weeks यू कैन गो फॉर रीप्रोबिंग और स्रिंजिंग, और उसके बाद लैक्रिमल इंट्यूबेशन। अगर फिर भी नहीं होता देन यू प्रोसीड फॉर DCR। ओके, और DCR जो है, DCR 4 साल से पहले अवॉइड इसलिए करते हैं, आमतौर पे नहीं किया जाता 4 साल से पहले। एक तो बोन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, दूसरा CSF राइनोरिया होने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, अगर इसको गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो ये विदाउट एनी इंटरवेंशन, जस्ट विद लैक्रिमल सैक मसाज एंड योर लिड हाइजीन और की वजह से बिल्कुल एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। जो ये समझना ज़रूरी है कि आई ड्रॉप्स आर नॉट द ट्रीटमेंट। आई ड्रॉप्स जस्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं, या अगर इन्फ्लेमेशन साथ एसोसिएटेड हो रही है उसके लिए दिए जाते हैं। बट योर थीम इज़ टू ओवरकम द स्टेसिस, कि जहाँ पे ये जो बंद हुआ हुआ है उसको ओवरकम करना है। दैट कैन बी इंड्यूस बाय मैकेनिकली और सर्जिकली। तो बाकी लैक्रिमल जो टीयर्स हैं, इसकी कंपोनेंट में एक लैक्रिमल ग्लैंड तो है ही है, लेकिन बाकी जो इसके 3 कंपोनेंट मेजर में आता है, जो पानी आंसू जो आते हैं यहाँ से शामिल होते हैं। अदर 3 कंपोनेंट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज़ मोहम्मद लुकमान अली। ओके, so mucin, lipids and aqueous. Aqueous is the major component. So बाकी mucin जो adhere करता है उसके साथ, और lipid evaporative effect को prevent करता है। That's it.